Hello friends, welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. So from today onwards, we are going to develop a new playlist, and this playlist will be known as 5 Facts in a Day. So nowadays in our competitive world, it is very important for each and every one of us to keep ourselves updated. So it is very helpful for the enhancement of our knowledge or understandability. Moreover, it is helpful from exam perspective as well, because several exams are lined up, right? So in order to get a good score in these exams, it is very important to become updated with the current affairs, right? So as a result of that, we are planning to develop such kind of playlist. So every day we are going to upload one video, and each video will contain 5 important recent facts of the entire world. Okay, so without wasting any time, let's start today's video session. So as a part of first fact of today's video session, we are going to discuss about BrahMos. Now the question arises, what BrahMos actually means. So BrahMos is a kind of missile which is a joint operation or joint initiative taken by India and Russia. So first of all, we are going to explore the meaning of the name BrahMos. So it is the combination of two famous rivers of India and Russia. In India, we have Brahmaputra river. So from the river Brahmaputra, we have taken B-R-A-H, Brah. And in Russia, we have one river that is known as Moskva. So from Moskva river, we have taken M-O-S. So together, it is known as what? BrahMos. Okay. So now when we talk about the fastest missile of the world, we often talk about Russia's one famous missile that is known as Zircon missile. It is the fastest missile in the world. Okay. So now what India actually planning to do is that India ने ये प्लान किया है कि इंडिया का जो ये ब्राह्मोस मिसाइल है उसमें जिरकन टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के बारे में सोचा गया है, जिसके वजह से क्या होगा, ब्राह्मोस का जो स्पीड था पहले से दुगना हो जाएगा. इट मींस ब्राह्मोस 2 यानी कि जो सेकंड या फिर जो लेटेस्ट एडिशन अभी डेवलप करने के बारे में सोचा गया है, ब्राह्मोस 2 होगा उसका नाम. और ये ब्राह्मोस 2 का जो स्पीड होगा वो पर आवर 11,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकेंगे. It's going to be a new achievement from Indian perspective. So now let's come to the fact number 2. We are talking about Russia, right? So in recent days, one popular event, it was there. Actually not popular, that was a kind of hazardous event was there. That was the war between Russia and Ukraine, right? अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट हुआ, राइट, उसको लेके यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसने एक प्रपोजल दिया है कि ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन था दैट वाज डन बाय रशिया, और इसीलिए रशिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रपोजल रखा गया था UNHRC में. HRC का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन राइट्स काउंसिल. और ये जो UNHRC है उसमें टोटल मेंबर्स हैं 47, राइट, एंड अमंग दिस 47 कंट्रीज 28 कंट्रीज ने फेवर में, यानी कि मतलब उन लोगों के हिसाब से इसका मतलब कार्रवाई होना चाहिए, ये जो प्रपोजल था उसके फेवर में उन लोगों ने वोट दिया. चाइना और इरिट्रिया 2 कंट्री था जिन्होंने डायरेक्टली इसको नकार दिया, यानी कि नो कह दिया कि मतलब कोई कार्रवाई होना नहीं चाहिए. नाउ लेट्स कम टू इंडियाज ओपिनियन. इंडिया ने क्या किया? अलॉन्ग विथ इंडिया एक्चुअली 17 अदर कंट्रीज दे आर स्टेइंग अवे in order to provide any opinion. मतलब इंडिया को साथ लेके टोटल 17 कंट्रीज ने क्या किया है, इस मैटर में कोई ओपिनियन नहीं दिया. वोटिंग करने से वो लोग अपने आप को दूर रखा है, ये चीज कहा गया. लेट्स कम टू द थर्ड रीसेंट फैक्ट. इंडिया में बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर है, कुछ क्या है पब्लिक सेक्टर्स भी हैं. अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बात करें तो थर्ड पोजीशन में आते हैं एक्सिस बैंक. तो अभी एक्सिस बैंक एक नया प्रोसेस लेके आ रहे हैं हम लोग के लिए, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. सो नाउ व्हाट इज द इनिशिएटिव टेकन बाय एक्सिस बैंक? तो उन लोगों ने क्या किया है, एक पॉकेट साइज्ड कार्ड रीडर डेवलप किया है, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन को ही हम लोग POS मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज जब भी हम लोग दुकान में जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जब भी हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो जो भी वेंडर्स होते हैं उन लोगों के पास एक POS मशीन होता है जो कि साइज में थोड़ा बड़ा होते हैं, कैरी करना भी मुश्किल होता है हर जगह में, राइट, क्योंकि चार्ज भी लगाना पड़ता है, बहुत कुछ इश्यूज होते हैं वहां पे, राइट. तो उन्हीं इश्यूज को टैकल करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज यहाँ पे ये आते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे मतलब चार्जेस लगते हैं स्वाइपिंग को लेके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस POS मशीन का प्राइसेस भी बहुत अलग है मतलब हाई है, राइट. तो अभी बात यहाँ पे है कि पहले बैंक से ये चीज दिया जाता था, आजकल क्या हो गया, बैंक ने इसको आउटसोर्स कर दिया, यानी कि अलग अलग कंपनीज आजकल क्या करते हैं, POS मशीन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही एक हाई रेट में, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंडर्स को इतना फायदा होता नहीं है.
सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, एक्सिस बैंक ने क्या कर दिया, एक पॉकेट साइज्ड कार्ड रीडर मशीन डेवलप किया है जिसको एक नया नाम दिया गया है माइक्रोपे। तो अभी माइक्रोपे जो है उसमें क्या होगा कि ये जो कार्ड रीडर है उसमें कार्ड आपको एंट्री करना होगा, कार्ड आपको उधर डालना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल को ही आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे पीओएस मशीन में कन्वर्ट किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, तो पीओएस मशीन मोबाइल कैसे बनेगा, राइट। तो ये जो कार्ड रीडर है उसको कनेक्ट किया जाएगा मोबाइल के साथ वाया ब्लूटूथ, और जब एक पर्टिकुलर कस्टमर अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर कार्ड रीडर में, उसके बाद क्या होगा, जो मोबाइल फोन है वेंडर का उसमें एक ऑप्शन आएगा ओटीपी डालने के लिए, और ओटीपी डालने के बाद ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको मतलब पहले पीओएस मशीन खरीदने के लिए आपको जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, आज उतना आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम पैसों में ये अवेलेबल होगा। दूसरा चीज, वो कैरी करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता था, अभी आप कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हैं बिकॉज इट इज अ पॉकेट साइज्ड कार्ड रीडर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सुविधा उपलब्ध होने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ फैक्ट्स ऑफ द डे। रिसेंटली एक सर्वे निकाला गया है और अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे बताया जा रहा है कि दुनिया के वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट का नाम निकाला गया है, और उनमें से इंडिया का जो इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको 10th पोजीशन मिला है। और एज पर द रिपोर्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, इट मींस इन द ईयर 2022, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अराउंड 5.9 करोड़ कस्टमर्स को, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ मिला के 5.9 करोड़ कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड किया है, ये चीज आपको कहा गया। लेट्स कम टू द फिफ्थ फैक्ट ऑफ द डे। As we know that in India we have the population structure of around 140 crore, right? लेकिन ये जो 140 करोड़ आबादी है इंडिया में, उन सभी को एकोमोडेट करने के लिए जो नंबर ऑफ चीफ जस्टिस है वो बहुत ही कम है। और एक सर्वे ने बताया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का एक सर्वे निकल के आया है, उन्होंने बताया है कि इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ चीफ जस्टिस है वो टोटल कितना है, 20,076। लेकिन बताया जा रहा है कि उनमें से 22% का सीट अभी भी खाली है जिसमें अपॉइंटमेंट देना बाकी है, ये चीज आपको कहा गया है। उसका मतलब यही हम लोग को समझ में आता है कि इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग रहने का एक मेन रीजन हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि नंबर ऑफ चीफ जस्टिस या फिर चीफ जजेस यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो मैकेनिज्म है, स्लो मैकेनिज्म है, उसके बीच में भी मतलब 4 स्टेट्स निकल के आए हैं, जिन 4 स्टेट्स ने मतलब इंडिया में टॉप 4 पोजीशन ऑक्यूपाई किया है इन सॉल्विंग डिफरेंट जुडिशियल डिस्प्यूट्स, राइट। बहुत ही जल्द उन लोगों ने मतलब राय देने में वो लोग सक्सेसफुल हुआ, या फिर मतलब जस्टिस देने में सक्सेसफुल हुआ है। और ये 4 स्टेट्स क्या क्या है? फर्स्ट पोजीशन वी हैव कर्नाटका, इन द सेकंड पोजीशन वी हैव तमिलनाडु, इन द थर्ड पोजीशन वी हैव तेलंगाना, एंड इन द फोर्थ पोजीशन वी हैव Andhra Pradesh. In today's video session, we have already covered 5 important facts of recent times. I hope all of you have watched this video and important information from this video, and I think this video will be very helpful for you all. So that's all for today's video session. We will meet in the next video session. Till then, thank you. Goodbye.